मेरे प्यारे होनहार बच्चों, ऑल वेल। आज चैप्टर नंबर 7 एक एप्लीकेशन वाला टॉपिक सीखने के लिए जा रहे हैं। उसके सिवा अभी जितने भी इंस्ट्रूमेंट जो वेव्स के साथ में रिलेटेड है, यू कैन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ में, वो कोई आप यूज नहीं कर सकते अगर ये नहीं समझा होता तो, और साइंटिस्ट लोगों ने अपने मतलब हम सबको नहीं बताया होता तो। दिस इज वन टाइप ऑफ बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ द इंडक्टर एंड द कैपेसिटर। ये एक ऑसिलेटर है जो फ्रीक्वेंसी जनरेट कर सकता है। आपको पता है मोबाइल वर्क करता है, टेलीविजन वर्क करता है, इवन आप एफएम रेडियो जो सुनते हो वो सब फ्रीक्वेंसी के साथ में रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं। लास्ट में भी एलसीआर सर्किट देखा, वो सिलेक्टिव काम करता था, लेकिन फ्रीक्वेंसी जनरेट कौन करेगा? सो फ्रीक्वेंसी जनरेट करने का काम सिर्फ और सिर्फ ये होता है एलसी ऑसिलेटर का। इन दिस केस द कैपेसिटर एंड इंडक्टर स्टोर सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। You know better that capacitors store energy in the form of electrical, or you can say that electric field, while you can say that inductors store energy in the form of the magnetic field. दोनों का फॉर्मूला याद करके रख लेना, थोड़ी देर में उसकी जरूरत हमको पड़ने वाली है। आई ना बात समझ में? बस वैसा ही काम करेंगे जो हमको जरूरी है, और ये आपको बहुत यूजफुल होगा आगे की स्टडी के लिए भी, है ना बच्चों? आगे भी बता चुका हूं कि ये चैप्टर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वेटेज भी इसका ज्यादा है, कंपैरेटिवली लर्न करने में भी तकलीफ कम होती है। ये सब कुछ आपको ध्यान में रहना चाहिए, राइट? नाउ माय डियर फ्रेंड्स, वी हैव वन कैपेसिटर एंड एन इंडक्टर व्हिच आर कनेक्टेड लाइक दिस। ओके, तो ऐसे मेरे पास दो है, मतलब एक कैपेसिटर है और दूसरा एक इंडक्टर है जो सर्किट के अंदर ऐसे कनेक्ट किया हुआ है, राइट? So this is nothing but one inductor L and this is nothing but one capacitor C. Suppose we have one key here which is open at any instant. कोई भी instant के लिए मैंने key open रखी है ऐसा समझो, and at this instant the time t is equal to 0. ये time t is equal to 0 के लिए है. So what about the condition? Condition क्या है? As time t is equal to 0, the capacitor is fully charged. That means it becomes positive charge here and it becomes this one negative charge becomes here. So that means upper plate is positively charged and lower plate is negatively charged. No current is flowing through this circuit. Circuit के अंदर से कोई current flow हो ही नहीं सकता because it is open. Right? Now, so at time t is equal to 0, you know that the charge on the capacitor is maximum, that is Qm, and what about the current? So current is 0. This is the condition at any instant? No, not at any instant. It is the initial time, t is equal to 0. Now as soon as I press this key, what happened? You know better. क्या होगा इसके लिए? So इसके लिए ये हो सकता है प्यारे बच्चों कि ये चार्ज जो नेगेटिव है वो यहां से जाएगा, यहां से वापस आएगा. So it is like this. The current is in the opposite direction. अगर चार्ज ऐसे फ्लो हो रहा है तो करंट ऐसे जाएगा. So current is in this direction. So this is it. So you can say that at any instant, now you can say that any instant t is equal to t, the charge q is equal to q, and the current through the circuit is, that is, you can say that I. ये कंडीशन हमको मिल गई. Now I want to apply the KVL, Kirchhoff voltage rule, for this circuit. So the voltage across this capacitor, you can say that VC, and voltage across this inductor, you can say that VL. Is there any battery in this circuit? You can say no sir, no battery at all. So just I write according to KVL, so I can say that it is VC plus VL and this is equal to 0. But what is VC, my dear friends? Go to the chapter number 2. Then this VC is equal to, you can say that here VC is equal to Q by C. Q is the charge at any time t and C is the capacitance of this capacitor, right? Now, what is VL, my dear friends? VL is equal to minus L into di by dt. What is L? What is this L? L is the inductance of an inductor. What is L? L is the inductance of an inductor. This is
You can substitute this 2 value here. So therefore I say that it is Q upon C minus L into this di by dt. This is equal to 0. Right? But फिर से आपको एक इंफॉर्मेशन है बिल्कुल क्लियरली. What about the charge in the capacitor as time is going on? You just say that charge in the capacitor gets decreasing. Yes, very good answer. आपका आंसर यही है कि धीरे 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 इसके ऊपर का चार्ज कम होने लगेगा. And as the charge is decreasing on this capacitor's plate, the current through the circuit is also decreasing. Current through the circuit is initially increase होगा. I am agree. But धीरे धीरे टाइम जाता जाएगा. एक बार मैक्सिमम हो गया, फिर धीरे 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 डिक्रीज होता जाएगा. So charge in the capacitor plate get decreasing. So here in this, substitute this I, you can say that, but this I is equal to dq by dt, but you have to put minus. क्यों माइनस? क्योंकि ये जो प्लेट के ऊपर चार्ज है ना, कैपेसिटर का चार्ज धीरे 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 डिक्रीज हो रहा है एंड यू आर गेटिंग द करंट. दैट्स व्हाई देयर इज अ नेगेटिव चार्ज. सिंपल बात है यार. ये डिफरेंस है चार्ज का, ये डिफरेंस है टाइम का. चार्ज का डिफरेंस कौन देगा? ये. तो इसके ऊपर चार्ज पहले ज्यादा था, फिर अभी क्या हुआ? कम. कम माइनस ज्यादा, माइनस टाइम तो इंक्रीज होगा ही होगा, है ना. इसीलिए यहां पर माइनस साइन लगाएंगे. नाउ माय डियर फ्रेंड्स, इट इज Q बाई C. ये माइनस इसके साथ में प्लस हो जाएगा. सो इट इज प्लस L इंटू दिस d स्क्वायर Q बाई dt स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 0. I write this term first one and this one is second one. So I just write d square Q by dt square plus Q by C. It is equal to 0. आप बोलोगे सर आप L लिखना भूल गए. जानबूझ के भूल गया. मैंने L नहीं लिखा, मतलब पूरे इक्वेशन को L से डिवाइड कर दिया. फिर से पूरी इक्वेशन को, ये इक्वेशन को L से डिवाइड कर दिया, तो इसका L कैंसल हो गया और ये L इधर आ गया. दिस इज नथिंग बट दी second order differential equation for LC circuits. This is nothing but the second order differential equation for this LC circuit. ऐसा सेम इक्वेशन आप लोग 11th स्टैंडर्ड में ऑसिलेशंस के चैप्टर में मैकेनिकल ऑसिलेशन मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए भी समझे हुए. और वो क्या है फॉर्मूला? सो वो फॉर्मूला है d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर प्लस you can say that omega square x is equal to 0. Right? This is your formula. आई बात समझ में? Okay, my dear friends. तो मैं अगर ये दोनों को कंपेयर करूं, फिर से बोल रहा हूं, what is this? This is the second order differential equation for LC circuit. What is this? This is the second order differential equation for simple harmonic motion. Okay. So now एक बात यहां से आपको क्लियरली समझ में आ जाती है और वो ये है कंपेयर करने से कि दिस ओमेगा नॉट, इसको ओमेगा नॉट लिखेंगे, दिस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू, यू कैन से दैट 1 अपॉन अंडर रूट LC. क्योंकि आपको मिलने वाला है ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन LC. राइट? ये स्क्वायर जो है ना बच्चों, ये मिलने वाला है, तो ओमेगा नॉट जब लोगे तो ये हो जाएगा. करेक्ट? तो आपके पास ये आंसर मिल गया. आई बात समझ में? तो अभी मेरे पास इसका आंसर, सॉरी, इसके साथ में कंपेयर करके ये मिल गया. व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ दिस चार्जेस. मतलब जो चार्ज ऑसिलेट करेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी ये होती है. राइट? व्हाट अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन? सो यू कैन से दैट द रूट ऑफ दिस इक्वेशन नंबर 1, व्हाट कैन आई से? द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 is, I just write Q is equal to Qm then cos omega naught into t plus phi. This is the solution of this equation number 3. Okay, इसको नंबर 3 देंगे और इसको नंबर 4 देंगे. राइट? फिर से बोल रहा हूं कि ये चार्ज किसके ऊपर वैरी होता है? कैपेसिटर के ऊपर. कहां से आया फॉर्मूला? मैं नहीं लाया. इसका आंसर ये देगा. नहीं पता है आंसर? कोई बात नहीं, इसका 2 बार इंटीग्रेशन करिएगा, ये आंसर आपको मिल जाएगा. 2 times you have to integrate this equation and you are getting this answer because there is a 2 times differentiation. To get this one you have to integrate 2 times. आप बोलोगे सर बढ़िया है, यही आंसर हमको समझ में आ जाए. नाउ यूज दिस इनिशियल कंडीशन. use this initial condition, you are getting some information. If
t is equal to 0, this, then you are getting this q is equal to qm. Therefore this q is equal to qm. In that case, अगर मैंने t is equal to 0 ले लिया तो मैं यहां पे क्या लग सकता हूं? I can say that this is equal to cos phi. Cos phi. And if t is equal to 0, you know that q is equal to qm. So this cos phi must be equal to 1. इसका आंसर cos phi हो जाएगा और cos phi 1 होगा, तभी जाके ये आंसर बन सकता है. So फिर से एक बार अगर मैं फोर्थ फॉर्मूला लिखूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे पास क्या होने वाला है. So this q is equal to now qm and then cos omega t. This is the charge which vary on the plate of this capacitor and it is number 5. How can I get the current from this equation? करंट क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा? So बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है. To get the current, that means I have to differentiate it with respect to time t. So इसके साथ में differentiation करना है, इसका differentiation. So you know better, it is qm. Then cos omega t का differentiation करोगे, it is sin omega t. Not सभी जगह पर आएगा. हाँ भाई, ये ओमेगा नॉट रहेगा ही रहेगा. जहां कहीं भी मैंने नहीं लिखा ना, समझ देना, it is omega naught. So this is the current formula. Now just I write this current. I is equal to what? It is Im sin omega naught into t. So as such, this is number 6. दूसरी बात बता दूं यहां पर. What is this Im? बच्चों Im क्या है? So it is qm into omega naught. As such का मतलब क्या होता है? जैसे कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज है वो वेरी होता है, करस्पॉन्डिंगली करंट थ्रू द इंडक्टर गेट ऑल्सो वेरी, बट दोनों में टर्म अलग अलग है. एक में कॉस है, एक में साइन है. आप तुरंत समझ जाओगे. जो मैथ्स थोड़ा बहुत भी जानता है, 1% भी जानता है, वो क्विकली समझ जाएगा. जब कॉस 1 होगा तो साइन 0 होगा. क्यों? क्योंकि 0 cos 0 is 1 and sin 0 is 0. मतलब क्या हुआ? When the energy stored in the capacitor fully, there is no energy in the inductor. ये बात हुई. When there is a sin pi by 2, so cos pi by 2 is 1 and sin pi by 2 is 1. Sin pi by 2 is 1 and cos pi by 2 is 0. Sorry, मैंने गलत बोल दिया पहले. Sin pi by 2 is 1 and cos pi by 2 is 0. What does it mean? क्या होगा उसका मतलब? बच्चों, उसका मतलब ये होगा कि वो टाइम के ऊपर इंडक्टर में मैक्सिमम एनर्जी होगा और कैपेसिटर में एनर्जी 0 हो जाएगा. ऐसे ऑसिलेशन चलता है और वही ऑसिलेशन हमको यहां पे बकायदा ड्रॉ करके समझना है कि कैसे हो रहा है. एंड यू नो टू फॉर्मूलाज. एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज गिवन बाय, सो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर is, you can say that in the form of electric field. So therefore it is U is equal to qm square upon 2c. यही फॉर्मूला है कि नहीं? ना उसके बाद में एनर्जी स्टोर्ड in an inductor is, you can say that UB मैग्नेटिक फील्ड में हो रहा है, and this is equal to 1/2 Li square. थोड़ा समझोगे आपको तो तुरंत सब कुछ बात समझ में आ ही जाने वाली है. ओके, मुझे यहां पे qm नहीं लिखना चाहिए बिकॉज इट गेट्स वेरी चेंज हो रहा है. ये q यहां पर, ये i यहां पर. अभी मैं उसकी वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दूं ये q की, तो क्या होने वाला है? सो दिस इज व्हाट? दिस इज इक्वल टू यू कैन से दैट qm स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा नॉट t अपॉन 2c. अगर इसके लिए लिखूं तो 1/2L देन Im स्क्वायर देन साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट t. अभी जाके आप पूरा का पूरा समझोगे कि यहां पर cos मैक्सिमम तो साइन 0, cos मैक्सिमम तो पूरी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में 0. तो ये सब चेंज होने वाला है. कैसे चेंज हो रहा है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन यहां पर सर्किट डायग्राम के साथ में मैं आपको बता रहा हूं. राइट? कैसे सर्किट डायग्राम काम करने वाला है वो भी समझा रहा हूं ध्यान से. सबसे पहले मेरे पास एक ये सर्किट है.
है तो यही और कुछ नहीं, लेकिन बार बार ड्रॉ करना है इसको। इनिशियली व्हाट हैपन, कंप्लीट चार्ज इज विथ ओनली द कैपेसिटर। इन दिस केस नो करंट इज थ्रू द सर्किट, कोई करंट है ही नहीं सर्किट के अंदर, तो ये ओपन बता देते हैं इसको, कोई करंट नहीं। सो व्हाट अबाउट द एनर्जी? आप तुरंत बोल दो कि सर इसके अंदर यू ई है क्यू स्क्वायर अपॉन 2c और यहां पर यू बी है 0, कोई एनर्जी इंडक्टर में नहीं है ना। जैसे ही आपने इसको क्लोज कर दिया, क्लोज करना मतलब कैपेसिटर का चार्ज धीरे धीरे सर्किट को मिलना, राइट माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा है, राइट। तो अभी ये सर्किट को चार्ज मिलना मतलब क्या होता है, बंद कर दिया तो अभी यहां पर ऐसा है, राइट। सो नाउ करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर से आई, सो देयर इज सम मैग्नेटिक फील्ड इन द कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड कोई एक डायरेक्शन में मिल सकता है, डोंट वरी अबाउट इट, कौन सी डायरेक्शन है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। In this case, if you want to write something that UE is not equal to 0 as well as UB is not equal to 0, ऐसा मिलेगा। अभी हमारे पास थर्ड कंडीशन ये आने वाली है प्यारे बच्चों कि यहां पर पूरी की पूरी कैपेसिटर की एनर्जी खत्म हो गई है। आई बात समझ में? कैपेसिटर में कुछ नहीं बचा, सब दे दिया इंडक्टर को, उसका मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा बढ़ गया, राइट, ऐसा बता सकते हैं। सो हियर द करंट इज मैक्सिमम, सो इन दिस केस I am. So now what should you write? You can say that UE is equal to 0 and this UB is equal to half LI square. आ रही है बात समझ में? अभी और दो डायग्राम बताने हैं। अभी इंडक्टर में जो करंट मैक्सिमम हो गया, धीरे धीरे कम होके यहां पर चार्ज मिलने वाले, बट इट इज इन सच अ वे दैट द पोलैरिटी ऑफ दिस टू प्लेट्स बिकम्स रिवर्स। इसकी पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। ये सब जो मैं बोल रहा हूं ना, पूरा का पूरा डिस्क्राइब करके लिखा है, लेकिन ये डिस्क्रिप्शन का हर एक सेंटेंस यहां से निकल रहा है, यहां से 2-3, यहां से 2-3, यहां से 2-3, ऐसा करते करते 10 सेंटेंस बन जाएंगे, क्योंकि 5 डायग्राम यहां पे लगाने वाले हैं। तो डिस्क्रिप्शन पूरा का पूरा यहां से मिलता है। वाई आर यू क्रैमिंग इट? क्रैमिंग को हो ही नहीं सकता फिजिक्स में। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते, यहां पर अभी देख सकते हो आप कैपेसिटर, राइट, देन इट इज द इंडक्टर। देन नाउ व्हाट हैपन, क्या हो जाएगा यहां पर प्यारे बच्चों? तो हो ये जाएगा कि यहां पर सबसे पहले जो चार्ज था ना, ये वाला उसका उल्टा स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ये। देन द एनर्जी इन द इंडक्टर गेट्स डिक्रीज, तो इसके जैसा स्टेज मिल गया। अगर इसके जैसा स्टेज मिलता है तो अगेन यू राइट दैट UE इज नॉट इक्वल टू 0 एंड UB इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। दोनों में से एक भी 0 नहीं है ना। उसके बाद में लास्ट स्टेज की मैं अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों मेरे, अगर लास्ट स्टेज की बात की जाए, लास्ट स्टेज मतलब हाफ साइकिल कंप्लीट हो गया एनर्जी का, है ना। अभी इसके इंडक्टर के पास कुछ नहीं बचा बच्चों, जो कुछ भी था वो कैपेसिटर ने लाओ मेरा एनर्जी वापस, है ना। तो अभी वापस आएगा तो क्या होगा, तो यहां पर फिर से फुल चार्ज हो जाएगा, यहां पर फिर से ऐसा हो जाएगा, राइट। तो ये कंडीशन हमको मिलने वाली है। सो नाउ व्हाट शुड यू राइट? You write that UE is equal to Q square upon 2C and here it is UB is equal to 0. बोलो कोई तकलीफ यहां पर नहीं ना? वेरी गुड। सो यहां पर जो हमने समझा उसके अंदर हाफ ऑफ द ऑसिलेशन गेट कंप्लीट। ओके, देखो यहां से 0 एनर्जी था कैपेसिटर का एनर्जी मैक्सिमम था, फिर मैक्सिमम कहां पे हो रहा है, तो यहां पर, तो हाफ कंप्लीट हो गया। सो यहां से 1 2 3 4। अभी इसके साथ में मैकेनिकल ऑसिलेशन को जोड़ देते, स्प्रिंग वाला, है ना। तो क्या करते हैं इन दिस कंडीशन,
इफ आई ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्प्रिंग, तो हर एक के साथ में मैं स्प्रिंग का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाला हूं बच्चों। ये रिजिड सपोर्ट है, तो स्प्रिंग को मैंने थोड़ा बहुत इलोंगेट करके रखा हुआ है, ऐसी कंडीशन। दिस इज द नॉर्मल कंडीशन ऑफ द स्प्रिंग। ये स्प्रिंग की खुद की ये वाली कंडीशन नॉर्मल कंडीशन। हियर यू कैन से दैट x इज इक्वल टू 0। ये x इज इक्वल टू 0 वाली कंडीशन। तो यहां पर उसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर हुई है, और वो कौन सी एनर्जी है? सो यू कैन से दैट सर u इज इक्वल टू दिस, u इज इक्वल टू हाफ k a स्क्वायर। 11th स्टैंडर्ड स्प्रिंग के ऑसिलेशन का चैप्टर। और ये व्हाट अबाउट इट्स काइनेटिक एनर्जी? सो काइनेटिक एनर्जी 0, क्योंकि ये स्टेडी है। अभी यहां से मैं थोड़ा इधर लाऊंगा, थोड़ा, तो यहां से अगर मैंने थोड़ा इधर ले लिया तो क्या होगा? सी, राइट। ब्लॉक तो ब्लॉक की कंडीशन में रहेगा ही रहेगा, है ना, लेकिन जो 0 वाली कंडीशन थी उससे थोड़ा दूर है, ये ज्यादा है। तो अभी आप यहां पे लिख सकते हो u इज नॉट इक्वल टू 0 एज वेल एज k इज नॉट इक्वल टू 0। दोनों कंडीशन समझ में आ रही है आपको। नाउ हियर व्हाट हैपन, अभी ये ब्लॉक यहां पे आ जाएगा। तो अभी इसकी कंडीशन मैं बताऊं ना बच्चों, तो यहां पे ऐसा हो जाएगा। दिस इज व्हाट, ये क्या होगा? तो अभी ये कंडीशन मेरे पास हो गई बच्चों, x इज इक्वल टू 0 वाली, x इज इक्वल टू 0 वाली कंडीशन। इट इज कंप्रेस्ड नाउ, राइट। इसके साथ में कंप्रेस होके यहां पर जाने वाला है। ओके, दिस कंडीशन इज कॉल्ड x इज इक्वल टू 0। एंड यू नो बेटर कि जब आप झूले पे बैठते हो तो क्या होता है, एंड पे जाता है तो स्पीड 0 हो जाती है, बीच में आता है तो स्पीड मैक्सिमम, फिर ऊपर जाओ तो फिर से स्पीड 0। बस सेम केस है, ही आ रही है। तो अभी प्यारे बच्चों मैं इसके लिए लिखूं ना, तो यहां पर पोटेंशियल 0 हो जाएगा, और ये काइनेटिक एनर्जी है ना 1/2 mv², मैक्स कर दो, आपका ये रिजल्ट फाइनली मिल गया। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर क्या होगा बच्चों? यहां पर है ना और कुछ होने वाला है, ये है ना कुछ और स्प्रिंग अंदर दबने वाली है। यहां से ये ब्लॉक अंदर जाएगा, यहां से भी अंदर जा रहा है, यहां से और अंदर जाएगा। सो यहां पर आप बोल सकते हो u इज नॉट इक्वल टू 0 एज वेल एज k इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। फाइनली ये कंडीशन, दोनों के पास एनर्जी है, दोनों के पास एनर्जी है, लेकिन फाइनल में क्या होगा? फाइनल में आप जीतने ही वाले हो, डोंट वरी। ये सब बहुत 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 इससे भी अंदर। सो यहां पर आप बोल सकते हो कि u इज इक्वल टू q स्क्वायर, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी है, मैकेनिकल है बच्चों। सो आई कांट राइट लाइक दिस। सो u इज इक्वल टू, यही लिखना पड़ेगा, 1/2 ka² एंड दिस काइनेटिक एनर्जी इज 0। ये k जो लिखा है ना वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये जो k लिखा है ना वो स्प्रिंग कांस्टेंट है। मतलब यहां पे दो आपने कंपेयर कर लिए, जैसे कैपेसिटर के साथ में पोटेंशियल एनर्जी होती है तो यहां पर वो है, इंडक्टर के साथ में मैग्नेटिक फील्ड के साथ में एनर्जी होती है, वो काइनेटिक एनर्जी के साथ में जोड़ दी, और बिल्कुल कंपैरिजन के साथ में आपने समझ लिया कि जैसे यहां पर चार्ज के ऑसिलेशन होते हैं वैसे यहां पर मैकेनिकल ऑसिलेशंस के जैसा ही ऑसिलेशंस यहां पर और यहां पर कंपैरिजन में मिलते हैं। Here in this circuit there are some oscillations related to the charge, and here the oscillations related to what? Related to some object which is suspended to the spring. स्प्रिंग के नीचे सस्पेंड किया, स्प्रिंग के बाजू में रखा है, ऑसिलेशंस कर रहा है। और कुछ ना समझो तो आप झूले के ऊपर बैठे हो ना, स्विंग के ऊपर, बस वही है ये, एग्जैक्टली सेम। आई बात समझ में? बस यही चीज आपको ध्यान से समझनी है। नाउ वी वांट टू कंपेयर द टू टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन एज जस्ट वी सेड। जैसे हमने बताया अभी वैसे ही हमको दो टाइप के ऑसिलेशंस को कंपेयर करना है, और वो कंपैरिजन अच्छे से कर सके, इसी से हमने यहां पर दो फॉर्मूला लिखा। देखो, दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इन द केस electrical oscillations. This is the second order differential equation in the case where there is a oscillations called mechanical oscillations.
मैकेनिकल ऑसिलेशंस के लिए फोर्स चाहिए प्यारे बच्चों, एंड एज यू नो दैट द फोर्स F इज इक्वल टू, यू नो दैट ma, it is equal to m into dv by dt, and you also know that m into d square x by dt square. ये है फोर्स ऑसिलेशन के लिए जरूरी. तो यहां पर क्या चाहिए, यहां पर आपको चाहिए EMF L is equal to minus L into di by dt. बच्चों it is equal to minus L into d square q by dt square. अगर कंपैरिजन की जाए ये ऑसिलेशन के इसके साथ में, तो डिफरेंस क्या आएगा? सो डिफरेंस मैं बताऊं तो पहला डिफरेंस प्यारे बच्चों ये L के साथ में देख लो. सो द रोल परफॉर्म बाय द मास एंड द मैकेनिकल ऑसिलेशन, सेम रोल परफॉर्म बाय द इंडक्टेंस इन द केस ऑफ द इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस. दूसरा, जैसे फ्रीक्वेंसी यहां पर आप इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस के लिए फ्रीक्वेंसी लिखते हो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट LC, वैसे मैकेनिकल ऑसिलेशन के लिए लिख सकते हो अंडर रूट K बाय M. तो आप K का मतलब भी समझ सकते हो. सो व्हाट इज K? स्प्रिंग कांस्टेंट K. यहां पे जो रोल परफॉर्म करने वाला है वो रोल यहां पर 1 अपॉन C परफॉर्म करने वाला है. यहां पर जो रेजिस्टेंस मतलब इसके साथ में होगा, तो यहां पर इसके साथ में क्या होगा, तो इसके साथ में होगा रेजिस्टिव फोर्स आएगा, राइट. उसके बाद की बात करें, जैसे यहां पर डिस्प्लेसमेंट है सी x, तो वैसे यहां पर चार्ज है q, राइट. यहां पर एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, this one capacitor, and the potential, you can say that in the form of electric field and in the form of magnetic field. So you just write u is equal to ue plus ub, ऐसा आएगा. And here you can say that u is equal to kinetic energy, potential energy plus kinetic energy. यहां पर फॉर्मूला लिख सकते हो q स्क्वायर अपॉन 2c प्लस 1/2 L I स्क्वायर. प्यारे बच्चों अगर यहां पर लिखा ना तो इट इज 1/2 k x स्क्वायर, के लिखना भूल गया, 1/2 k x स्क्वायर प्लस यू कैन से दैट 1/2 m v स्क्वायर. तो ये सब कंपैरिजन है. जैसे यहां पर वेलोसिटी है, वैसा ही काम यहां पर करंट का होता है. क्योंकि अगर आप इसको कंपेयर कर दिया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी v इज इक्वल टू दिस वन. पूरा नहीं है, सिर्फ वेलोसिटी, तो करंट होता है, राइट. सो ये तो पूरा मैंने रखना पड़ेगा ऐसे. बट यू कैन से दैट v इज इक्वल टू डी, जैसे v काम कर रहा है वैसे I काम कर रहा है. व्हाट इज v? इट इज dx by dt, एंड वैसा ही काम यहां पर कर रहा है dq by dt, राइट. कंपैरिजन हो रही है, इसीलिए मैंने एक साथ में रखा है. और एक इंपॉर्टेंट बात, इंडक्टर भले ही एकदम से आइडियल वाला ले लो, एकदम परफेक्ट आइडियल वाला, कुछ भी करो, आइडियल इंडक्टर ले लो ये वाला, लेकिन उसका खुद का थोड़ा बहुत भी रेजिस्टेंस तो होता ही है. सो एज टाइम इज गोइंग ऑन, एज द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम इंडक्टर टू कैपेसिटर एंड कैपेसिटर टू इंडक्टर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टेंस the current in the circuits gets decreasing and finally it becomes zero. वैसे एक बात, कभी भी कोई भी इंडक्टर जीरो रेजिस्टेंस वाला नहीं मिलता. उसके पास इंडक्टिव प्रॉपर्टी है, यस वेरी गुड, बट रेजिस्टिव प्रॉपर्टी जीरो नहीं होती है. रियलिटी की बात कर रहा हूं. एंड ड्यू टू दैट रीजन व्हाट हैपेंड, द करंट इन द सर्किट्स इज डेसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट इन द इंडक्टर. ये सर्किट का करंट यहां पर जाएगा तो थोड़ी बहुत एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, एंड ड्यू टू दैट रीजन द करंट थ्रू द सर्किट गेट्स डिक्रीजिंग एंड फाइनली इट बिकम्स जीरो. और एक बात आगे, हियर देयर इज you can say that the charge is increasing and current is increasing and current is decreasing. So there is a accelerated motion of the charge, and as you better know, due to the accelerated motion of the charge, it will emit the radiation in the form of electromagnetic waves. That's why sometimes this circuit is known as the tank circuit. इसीलिए सर्किट को टैंक सर्किट बोला जाता है. फिर से एक बात, here the charge possesses the accelerated motion, and due to that accelerated motion it emit radiation in the form of electric and magnetic field. हमारे घर के ऊपर जो डिश एंटीना लगा हुआ है ना, वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रहे हैं और वो कैचअप कर रहा है. मतलब वहां पर भी कैचअप करने के लिए और भेजने के लिए, दोनों के लिए ऐसी सर्किट्स चाहिए. टीवी के अंदर ऐसी सर्किट्स खुद है.
इवन आप जो मोबाइल हाथ में लेके बैठे हुए ना, उसी के अंदर भी ऐसे ऑसिलेटर्स है। क्योंकि जब कभी भी आप किसी को मोबाइल से मोबाइल फोन करते हैं ना, तो रिंगिंग होता है, तो वो वेव्स जाते हैं, और वो वेव्स जाते हैं, वो जनरेट कौन करता है इतने से छोटे से मोबाइल के अंदर? तो ऐसी सर्किट है, और वो जनरेट करती है फ्रीक्वेंसी को, और वो सैटेलाइट पे जाती है, सैटेलाइट से वापस आती है, तब रिंगिंग पॉसिबल है। सोचना स्पीड कितनी है। इट इज द स्पीड ऑफ द लाइट, राइट? इट इज द स्पीड ऑफ द लाइट, और लाइट की स्पीड से वो जा रहा है, इसीलिए इतना फास्ट हो जाता है। लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट? बहुत फास्ट है। ओके बच्चों, कई बार एमसीक्यू, सिंपल एमसीक्यू जो एकदम से इजी वे में जाने वाले, वैसे एमसीक्यू के लिए आपके पास वो जो थियरी है ना, जो पेज के उसके पीछे वाला पेज है, वहां पर 2 डिफरेंशियल इक्वेशन लिखे हुए। पहला इक्वेशन मैकेनिकल ऑसिलेशन के लिए, मैकेनिकल ऑसिलेशन। तो मैकेनिकल ऑसिलेशन के लिए डिफरेंशियल फॉर्मूला जो है मेरे पास वो ऐसी है, m इंटू d स्क्वायर x बाई डी टी स्क्वायर प्लस b dx बाई डी टी प्लस यू कैन से दैट kx, इट इज इक्वल टू f इंटू, उसके साथ में साइनोसॉइडल या कोसाइन वाला फोर्स होना चाहिए, सो इट इज कॉस ओमेगा d इंटू डी। डी का मतलब है डैम्प्ड ऑसिलेशन हो रहे हैं और उसको ड्रिफ्ट करना है, सो इट इज सम टाइप ऑफ ड्रिफ्ट। और यहां पर हो रहा है इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन, इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन। तो इसके जैसा ही फॉर्मूला अगर इसके लिए लिखा जाए तो L इंटू डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस जो B काम करेगा वो रेजिस्टेंस काम करेगा, इट इज डी क्यू बाई डी टी, देन प्लस के एक्स की जगह पर हमारे पास होगा क्यू बाई सी, एंड दिस इज इक्वल टू, यहां पर रहेगा हमारे पास कौन काम करेगा इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर? वोल्टेज। सो यू कैन से दैट इट इज Vm एंड इट इज साइन ओमेगा टी। आप चाहो तो ओमेगा नॉट लिख सकते हो। ऐसा पूरा का पूरा टेबल आपको कंपैरिजन का दे दिया है। मैं यहां पे पूरा नहीं लिखने वाला हूं, समझो। जैसे यहां पर x डिस्प्लेसमेंट के लिए, वैसे यहां पर चार्ज है ऑसिलेशंस के लिए। दूसरी बात, जो काम m करेगा, और यू कैन से दैट dx बाई dt, वेलोसिटी v, तो यहां पर करंट करेगा I इज इक्वल टू dq बाई dt। जो काम b करेगा, डैम्पिंग कोएफिशिएंट, वो काम यहां पर रेजिस्टेंस करेगा। जो काम यहां पे मास करने वाला है, वो काम यहां पे इंडक्टेंस करने वाला है। जो काम K करने वाला है, K स्प्रिंग कांस्टेंट, वही काम यहां पर 1/C करने वाला है, रेसिप्रोकल ऑफ द कैपेसिटेंस। फ्यूचर में आप उसको एडमिटेंस भी बोलने वाले हो ना। उसके बाद में एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट इज इक्वल टू K बाय M, ओमेगा D भी लिख सकते हो, ड्रिफ्ट वाला बोल सकते हो, राइट? एंड हियर इट इज ओमेगा, एंड दिस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC। इसके लिए आपको फोर्स चाहिए, और फोर्स लिख सकते हो F इंटू दिस कॉस ओमेगा डी इंटू टी। वैसा ही वहां पर चाहिए आपको मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस के लिए EMF चाहिए, लेकिन वो भी साइनोसॉइडल चाहिए, राइट? तो ऐसी कंपैरिजन आपको एक एक मार्क्स के सिंपल लेवल के एमसीक्यू के अंदर मिल सकती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ दिस टाइप ऑफ कंपैरिजन। जल्दी से आप आंसर्स ढूंढ सकते हो अगर ये और ये फॉर्मूला आपने याद कर लिया तो। क्लियर?